Graphing functions. A function is increasing if in the interval a to b where b greater than equal to a, f of b is greater than f of a, and it is decreasing if f of b is less than f of a and b is greater than a in the interval. And if f of a is equal to f of b, then we say that it is a constant function. If we are familiar with the quadratic equation, and f of x is equal to ax square plus bx plus c, where a not equal to 0 is a quadratic function. Properties of quadratic functions. If we simplify this equation using completing the square method, we get the following form: f of x is equal to a into x minus h whole square plus k, where a not equal to 0. From this type of equation we get different values of different things. X is of symmetric. For x is equal to, if we put x minus h is equal to 0, we get x is equal to h, which is axis of symmetry. H and k are vertices of this graph, and this will be the parabola, and these are the coordinates of this vertex. H and k are these. If a is greater than 0, if a is positive, then the parabola will open upwards and we get the k that will be minimum value of f of x. If you see in your book, you can see these properties. Here, if a greater than 0, then the parabola will open upwards and we get minimum value of the function that is equals to k. If a is less than 0, if a less than 0, then the parabola will open downward. Coordinates of the vertex are same h and k, but if a less than 0, we get maximum value of the function, and that is again k. Axis of symmetry in both the cases, x is equal to h is axis of symmetry, and if a greater than 0, we get k is the minimum value, and if a less than 0, we get the maximum value. Domain is set of all real numbers, and range in both the cases, if a less than 0, range will be minus infinity to k, and if a greater than 0, then the range is k up to infinity. K is included in the solution. So if we look at this question, first converting this function into this form by using completing the square method. Taking minus common from this function, we get x square minus 4x. So by completing the square, adding square of 2 and subtracting square of 2, we get x minus 2 whole square minus into minus plus 4 square प्लस 4 एंड दिस माइनस 4. इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू आपको 0 मिल गई. अब इसको जब मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से a इज -1 जो कि लेस देन 0 हो गया. x इज इक्वल टू -h इज इक्वल टू -2 मीन्स h इज इक्वल टू 2 एंड दिस वन विल बी +0 एंड वैल्यू ऑफ k इज 0. अब यहाँ से अगर आप देखें तो इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आएगा, x इज इक्वल टू h था तो h क्या 2 है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गया x इज इक्वल टू 2. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं h और k, जो कि आपके पास h की वैल्यू जो है वो 2 है और k 0 है. तो x जो इसके वर्टिसेस होंगे, पैराबोला जहाँ से बेंड हो रहा है वो 2 और 0 है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. उसके बाद a जो है वो लेस देन 0 है, इट मीन्स दिस विल ओपन डाउनवर्ड, नीचे ओपन होगा और इस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x दैट इज़ k. तो k की वैल्यू क्या है 0. तो ये सारी वैल्यूज़ कंप्यूट की है हमने यहाँ पे. वर्टेक्स 2 0 -1 है, ओपन डाउनवर्ड, एक्सिस ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल टू h,
और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो के की है 0। ग्राफ अगर इसको ड्रॉ करेंगे ये है, और इस पे जो आप लोग डोमेन इसकी है, डोमेन विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या है, लेस देन 0 है तो माइनस इन्फिनिटी से आपके पास k एंड k इज 0, तो ये आपके पास 0 क्लोज इंटरवल, दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इसी क्वेश्चन में जो है उसके बाद है आपके पास इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। एक्स इंटरसेप्ट्स वो पॉइंट्स है जहाँ वाई की वैल्यू 0 हो, तो आप वाई को 0 पुट करते हो तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और एक्स इंटरसेप्ट में आप वाई को 0 पुट करते हो और वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू 0। ये हम लोगों ने इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट किए हैं इसी क्वेश्चन में। 19 अप टू 37 क्वेश्चन 2.4 के। क्वेश्चन नंबर 21 जो है 19 अप टू 37 के लिए जो 21 क्वेश्चन है। ग्राफ फाइंड द वर्टिसेस, एक्सिस, वर्टेक्स, मैक्सिमम मिनिमम और रेंज ऑफ दिस फंक्शन। गिवन है ये 21st क्वेश्चन इसी फॉर्म पे, वरना इसको कंप्लीट स्क्वायर से हम लोग प्रीवियस एग्जांपल की तरह करेंगे। a विल बी -1, h विल बी -3 कंपैरिजन के साथ, एंड k इज इक्वल टू -2। सो एक्सिस क्या बन गए, एक्सिस थे x इज इक्वल टू h जो कि x इज इक्वल टू -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं h और k हैं, -3 और -2। a लेस देन 0 है सो इट विल ओपन डाउनवर्ड, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है k की, k है दैट इज -2, और ये इसको ग्राफ किया गया। और रेंज क्या है इसकी, क्योंकि लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी से k तक, तो k -2 है। सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या आप कंप्लीट स्क्वायर करना है, टेकिंग माइनस कॉमन, ये बन गया 3 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद जब आपने इसको ओपन किया, a will be -1, axis of symmetry -h will be -3 means h is equal to 3, so axis of symmetry is x is equal to h, that is 3। k जो है वो 9 है। वर्टिसेस जो कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टेक्स v के वो आ गए h और k 3 और 9, और उसके बाद आपके पास जो a नेगेटिव है लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो उसके जो है मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो k होगा 9। उसके बाद x इंटरसेप्ट में यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 मैं पुट करता हूँ जो कि मेरा y है। तो यहाँ से x -3 स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स, कंपेयर किया तो x 6 0 और 0 0 आपके पास x इंटरसेप्ट आ गए, जिन पे देख रहे हैं आप y की वैल्यूज। y इंटरसेप्ट में x को 0 पुट करेंगे, ये 0 किया तो यहाँ पे y भी 0, तो 0 0 जो है इसके x इंटरसेप्ट आ गए। तो ये आपके पास ग्राफिकली इसको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद जो आपके पास 37th क्वेश्चन है, इनमें आप लोगों ने डोमेन, रेंज और पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अगर आप इन क्वेश्चंस में देखेंगे, जैसे ये 31st क्वेश्चन है, फ्रैक्शन नहीं है, अंडर रूट नहीं है, इसलिए ये कहीं पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा। इसकी डोमेन क्या है, -1 से 0 तक ये फंक्शन यूज़ हो रहा है, x -1 से 0 तक, और जब 0 to 1 है तो आपके पास ये फंक्शन। तो इसकी जो डोमेन है वो गिवन है -1 अप टू 0 यूनियन 0 अप टू 1। जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें वो कहता है अगर x लेस देन 0 मीन्स -∞ अप टू 0, तो उस वक्त आप लोग कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, x² + 1, कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं है। और जब आपके पास 0 to +∞ है तो उस वक्त आप कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हो, -x² - 1, तो ये भी कहीं पे अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी डोमेन जो है वो -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞ बन रही है। और इसकी रेंज के लिए अगर आप देखें तो आपके पास अगर आप इसमें 0 पुट करते हैं तो 1 आंसर आ जाता है, इसमें पुट करते हैं तो -1 आंसर आ जाता है। तो रेंज के लिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि रेंज